Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start Amazing Science of Class 4, Unit 13, The Earth. The Earth as seen from space. खला से ज़मीन ऐसे नज़र आती है जैसे ये तस्वीर में दी गई है. Let's start reading the Earth. The Sun and its 8 planets make up the solar system. सूरज और इसके 8 सियारे मिलकर निज़ाम शमसी बनाते हैं. The Earth is one of the 8 planets that travel around the Sun. ज़मीन इन 8 सियारों में से एक है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है. It is the 5th largest planet of the solar system. ये निज़ाम शमसी का 5वां बड़ा सियारा है. The planets follow oval paths or orbits, so their distance from the sun is always changing. सियारे बेज़वी शक्ल के मदार या ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं. इस तरह ये सूरज के गिर्द अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं. The shape of the earth is not absolutely round. ज़मीन की शक्ल मुकम्मल गोल नहीं है. It is a geared. ये सतह समंदर से ऊपर है. That means it is round but slightly flattened at the top and bottom. इसका मतलब है कि ये गोल है मगर ऊपर और नीचे से थोड़ी सी सीधी है. It is surrounded by a blanket of air called the atmosphere, which is made up of many gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and dust particles. ज़मीन को हवा के गुलाफ ने ढका हुआ होता है जो कि एटमॉस्फेयर कहलाता है. एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनती है जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात और गर्द के ज़रात वगैरह. Movement of the earth. The earth is always spinning. ज़मीन हमेशा घूमती रहती है. It turns on its axis. ये अपने मदार में घूमती है. Which is an imaginary line passing through north and south poles. जो कि एक तस्वुराती चक्कर है जो नॉर्थ से साउथ पोल तक जाती है. It takes 24 hours to spin once on its axis. अपने मदार में चक्कर मुकम्मल करने के लिए ज़मीन को 24 घंटे लगते हैं. This movement of the earth on its axis is called rotation. अपने मदार में सूरज की ये हरकत एक चक्कर कहलाता है. Throughout the day, it appears that the sun is slowly moving from east to west. तमाम दिन ऐसा महसूस होता है कि सूरज मशरिक़ से मगरब की जानिब आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है. This is because the earth is spinning on its axis from west to east. ऐसा इसलिए है ज़मीन अपने मदार में मशरिक़ से मगरब चक्कर लगा रही है. The sun itself doesn't move. सूरज खुद हरकत नहीं करता. Day and night. As the earth spins on its axis, the part of the earth which faces the sun daytime. जैसे जैसे ज़मीन अपने मदार में घूमती है ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है इधर दिन का वक्त होता है. The part of the earth which is on the other side has night. जबकि ज़मीन की दूसरी तरफ रात होती है. Seasons. The axis of the earth is not straight. ज़मीन का मदार सीधा नहीं है. It is slightly tilted at an angle of 23.5 degree to its orbit. ये 23.5 डिग्री के एंगल पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है.
as well as turning on its axis, the earth also goes round the sun. जिस तरह से इसका एंगल मुड़ता है ज़मीन इसमें सूरज के गिर्द घूमती है. It takes almost 365 days to go once round the sun. ये 365 दिन के अंदर सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है. This movement of the earth around the sun is called a rotation. सूरज के गिर्द ज़मीन का ये चक्कर रिवॉल्यूशन कहलाता है. During its revolution के दौरान sometimes the north pole is tilted towards the sun and sometimes the south pole is tilted towards it. बाज़-औक़ात नॉर्थ पोल सूरज की जानिब टिल्ट करता है और बाज़-औक़ात साउथ पोल सूरज की जानिब टिल्ट करता है. The part of the earth which is tilted towards the sun receives more light, so it is warmer. ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज की जानिब टिल्ट करता है वहाँ रोशनी ज़्यादा होती है, इसलिए वो हिस्सा गर्म होता है. It is summer in that part of the world. दुनिया के इस हिस्से में, ज़मीन के इस हिस्से में मौसम गर्मा होता है. The part which is tilted away from the sun receives less light, so it is colder. ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज से परे होता है इस जगह ठंड होती है. It is winter in that part of the world. दुनिया के इस हिस्से में मौसम सरमा होता है यानी कि ठंड होती है. When both hemispheres of the earth get almost equal amount of light from the sun, it is either spring or autumn. जब ज़मीन के दोनों हिस्सों सूरज से बराबर रोशनी पड़ती है, मतलब दोनों हिस्सों में जब बराबर रोशनी पड़ती है तो फिर मौसम बहार होता है या फिर मौसम ख़ज़ां. Constellation. On a clear night you see thousands of stars in the sky. जिस रात आसमान साफ़ होता है यानी कि बादल नहीं होते तो आसमान पर आप हज़ारों के हिसाब से सितारे देख सकते हैं. इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखें तो यू विल सी, आप देखेंगे दैट ग्रुप्स ऑफ स्टार सीम टू मेक शेप. जो सितारों का एक ग्रुप है यानी कि झुरमट है वो उसने अपनी शेप बनाई हुई होगी, यानी कि आपको मालूम होगा कि एक शेप बनी हुई है सितारों की. दीज शेप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. ये शेप जो है ये शक्ल कॉन्स्टिलेशन कहलाती है. Constellation have fixed position in the sky. सितारों के झुरमट की आसमान पर एक मखसूस जगह होती है. In olden days they helped travelers to find their way. पुराने ज़माने में ये सयाहों को रास्ता तलाश करने में मदद देते थे. If you know the shape of a constellation and its position in the sky, you can find it easily. अगर आप सितारों के झुरमट की शक्ल और उनकी मखसूस जगह आपको मालूम हो तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं. The Big Bear. High in the sky in the northern part of the world, it is possible to see a constellation called the Big Dipper. आसमान में दुनिया के शुमाली हिस्से में सितारों का झुरमट आपको दिखाई दे सकता है जिसे बिग डिपर कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टार्स अरेंज्ड एज शोन इन द डायग्राम. ये 7 सितारे तरतीब में दिए गए हैं जो कि डायग्राम में दिखाई दे रही है आपको. द लोअर 2 स्टार्स आर कॉल्ड पॉइंटर स्टार्स. नीचे वाले 2 सितारे पॉइंटर स्टार कहलाते हैं. दे ऑलवेज पॉइंट टू अ ब्राइट स्टार called the pole star or the north star. इसमें एक चमकदार सितारा होता है जिसको पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहा जाता है. The north star is always in the northern part of the sky directly over the north pole. जो नॉर्थ स्टार होता है वो हमेशा आसमान के शुमाली जानिब होता है, बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर. The Big Dipper appears to show around the pole star. Big Dipper पोल स्टार के ऊपर घूमता हुआ दिखाई देता है. Land and water on earth.
इफ़ यू लुक एट अ ग्लोब, अगर आप नक्शे को देखें, यू विल सी ब्लू पार्ट्स विच आर ओशंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स। आपको नीले हिस्से दिखाई देंगे जो कि समंदर, दरिया और झीलें हैं। द ब्राउन एंड ग्रीन पार्ट्स आर द प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। भूरे और सब्ज हिस्से हमवार सतह, पहाड़ियाँ और सहरा है। वी सी दैट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोब कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड 2/3 कंसिस्ट ऑफ वाटर। हमने देखा कि ग्लोब का तीसरा हिस्सा ज़मीन पर मुश्तमिल है और 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। Population and land. Most people live on plains, river valleys and sea coasts as these areas are fertile. दरियाओं की वादियों, ज़्यादातर लोग हमवार सतहों, दरियाओं की वादियों में रहते हैं और समंदर के साहिलों पर रहते हैं, जो जैसा कि वो ज़मीन फर्टाइल होती है, यानी कि ज़रखेज़ होती है। क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ट्रीज कैन बी ग्रोन देयर। फसलें, सब्जियां और फल वहाँ नशोनुमा पा सकते हैं। फ्यू पीपल लिव इन माउंटेन्स और डेजर्ट्स। चंद लोग पहाड़ों और सहराओं में रहते हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज़ आइदर टू कोल्ड और टू हॉट देयर, क्योंकि वहाँ या तो बहुत सर्दी होती है या गर्मी होती है। नॉट मच ग्रोज देयर, वहाँ ज़्यादातर फसलें नहीं उगती। द मून इज़ द अर्थ's नेचुरल सेटेलाइट। चाँद ज़मीन की कुदरती सेटेलाइट है। इट इज़ अबाउट 384,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। चाँद ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इट हैज़ नो एयर एंड नो साइन ऑफ लाइफ। चाँद पर ना ही हवा है, ना ही कोई ज़िंदगी है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है। द मून रोटेट्स वेरी स्लोली। चाँद बहुत आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश करता है। इट रोटेट्स वंस इन द सेम टाइम एज इट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये ज़मीन के गिर्द अपने मदार में घूमकर अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। दिस मीन्स दैट द सेम साइड ऑफ द मून इज़ ऑलवेज फेसिंग द अर्थ। इसका मतलब है कि चाँद हमेशा एक ही साइड से ज़मीन का सामना करता है। द सरफेस ऑफ द मून इज़ ड्राई एंड हार्ड। चाँद की सतह खुश्क और सख्त है। एंड इज कवर्ड विद डस्ट, और गर्द से ढकी हुई है। इट हैज़ लार्ज पिट्स कॉल्ड क्रेटर्स। चाँद पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जो कि क्रेटर कहलाते हैं। Phases of the moon. The moon revolves around the earth once every lunar month or 29.5 days. चाँद ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर एक कमरी महीने में या 29.5 दिनों में मुकम्मल करता है। When the side of the moon lit by the sun faces the earth, we see a full moon. जब चाँद की एक साइड सूरज से रोशन होती है तो वो ज़मीन का सामना करती है। चाँद की वो साइड ज़मीन का सामना करती है, इसलिए उसकी एक साइड रोशन होती है। हम पूरा चाँद देख सकते हैं। When the moon is on the side of the earth nearest to the sun, we see a thin slice of the moon. जब चाँद सूरज के एक साइड पर होता है तो सूरज के नज़दीक, तो फिर हम चाँद का कम हिस्सा देख सकते हैं। This is called a new moon. इसको नया चाँद कहा जाता है। Sometimes we see no moon at all. बाज़ औक़ात हमें चाँद दिखाई नहीं देता। The section of the reflecting surfaces of the moon that we see from the earth are called the phases of the moon. चाँद के वो टुकड़े जो रोशनी के टकराने के बाद हमें ज़मीन से दिखाई देते हैं, वो चाँद की इश्काल कहलाती हैं।